Good morning, student. So today we are going to start from salt satyagraha, then case study. Before that, let me just go through what we had read in the previous lessons. Before this, we have seen about how the new generation start to attract towards Mahatma Gandhi. In this new generation, they are prosperous businessmen, educated, we can say registers and learned persons, and they started to follow Mahatma Gandhi's idea. And in that, in businessman, we had seen about G.D. Birla, who supported openly, and others were technically means not showing the Britishers but supporting the satyagraha or the we can say independent fight. Then we have seen that the princely states, the area where the ruling was done by the kings and Nawabs. So here also Congress start to implicate the Praja Mandal system. Then we have seen about how after the independence from jail in February 1924, Gandhi had shown his another phase of the life, and he started to spun the cloth, and he started to talk much about the untouchability and all the we can say short systems which can be said that the social evils, okay, like child marriage and other things. Not only this, he specifically appealed the people to wear khadi and make khadi or hand-spun clothes so that the economy of Britishers can be uprooted. So today we are going to see about the Satyagraha case study. Before that, we are going to see that how the December 1929 they started to dream about a free India, and this was a beautiful dream for all of us as well. Today also we enjoy, that's why then they started to think how they will celebrate and what kind of India will be that, and who all are having the we can say rights, then how the people will be. So that's all the things there. So let's start the lesson, the salt satyagraha, a case study. Then for several years after the non-cooperation movement ended, Mahatma Gandhi focused on his social reform work. In 1928, however, he began to think of re-entering the politics. That year there was an all-India campaign in opposition to all-white Simon Commission sent from the England to inquire into the condition in a colony. Then Gandhi did not himself participate in this movement, although he gave his blessings, as he also did to President Satyagraha in the Bardoli in same year. अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड महात्मा गांधी, जैसे मैंने कहा, एक नया रूप, एक नया फ्रेज दिखाऊंगा, वो पूरी तरीके से भारत के अंदर से जो भी सोशल इवल से जो सामाजिक बुराइयां थी और जो ऐसी चीजें थी जो भारतीय समाज के लिए एक शर्म की बात हो जाती कि अंग्रेज हर समय उसी बात को लेकर बोलते थे कि ऐसा है, आप क्या स्वतंत्रता की बात करें, ऐसा है, आपके देश में ऐसा है। तो अल्टीमेटली कुछ उसको रेक्टिफाई करें, जो शुद्ध करें, तो उसको हटाना चाहते थे, ताकि वो पूर्ण रूप से एक ऐसे समाज के लिए बात कर सके जिसमें कोई भी कमी पेशी ना हो। अगर हम देखें तो 1982 के बाद उन्होंने वापस राजनीति में आना शुरू किया। वैसे तो डायरेक्ट दिखाई नहीं दिए, परंतु जब साइमन कमीशन आप सबने पढ़ा है, गो बैक साइमन, तो वो काला जो झंडा और बॉम्बे वाला सब आपने उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। सो प्लीज आप उन चीजों को याद करें और उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें, तो आपका स्टफ जो है लेसन स्टफ बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देखें तो गांधी जी डायरेक्टली नहीं गए, उन्होंने उस सिस्टम को, मतलब जो लोग इसके विरोध कर रहे थे उनको बोला मेरा साथ तुम्हारे साथ है, या फिर हम ये कह सकते हैं अपना ब्लेसिंग उनको दिया। इसी के अनुसार उन्होंने जो किसान जो सत्याग्रह कर रहे थे बारडोली में, उनको भी अपना आशीर्वाद दिया। देन अगर हम देखें तो इसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था। ये एनुअल सेशन लाहौर में हुआ था, कई बार प्लॉट कट गया है, सो प्लीज गो थ्रू इट, ओके, मैप में आप इसे जरूर देख लें। देन द मीटिंग जो है वहां पर दो खास चीजें दी, एक तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत करना और सबका उनके और वोट डालना कि भाई हम नई जनरेशन को क्या करने देंगे, आगे आने देंगे। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की डिमांड करना, भाई हमें एक हिस्सा नहीं चाहिए, हमें पूरा भारत हमारा स्वराज के रूप में चाहिए। देन हम देखें तो पॉलिटिकल, यहाँ पर अगर देखें 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ऐसे इन्होंने माना और सेलिब्रेट करने चाहा था। देन हम देखेंगे नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया अलग अलग जगह पर और पैट्रियोटिक देशभक्ति के गीत गाए गए। गांधी जी खुद ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए, यानी इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए कई अपनी जो सोच उसके अंदर रखी थी। उन्होंने कहा ये सही है, ये अच्छा है कि हमें अपना इंडिपेंडेंस डे जय घोष के साथ बड़े आनंद के साथ मनाना है और डिक्लेयर करना है कि वी आर इंडिपेंडेंट। परंतु ये सिर्फ शहर में ही नहीं, ये सिर्फ अमीरों में ही नहीं, परंतु गरीब से लेकर गांव से लेकर हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है। उसके ऊपर से मतलब गुलामी की, तो हम यहाँ पर गुलामी में जातिवादी गुलामी को भी हटा कहेंगे, धार्मिक जो पाबंदियां उसको भी कहेंगे। हर तरीके से इंसान स्वतंत्र होके आइडेंटिकल मिनट उसको जिए। देन गांधी जी ने सजेस्ट किया दैट द टाइम ऑफ द मीटिंग बी advised in the traditional way by the beating of the drums and the celebrating would be being with the hosting of the national flag and rest day would be spent in doing some constructive work, जो हम आजकल नहीं करते। Then whether it is spinning or serving the untouchables or reunions of the Hindu and Muslims or prohibitional work or even as these together, which it is not impossible participate would take the pledge of forming that it was the inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruit of toil। अगर हम देखें तो गांधी जी ने बहुत बड़ी बात की। अगर आज हम इंडिपेंडेंस डे ये सब करते हैं डे में और उसको इस तरह से सेलिब्रेट करें तो शायद हमारे बीच में बहुत सारी जो कड़वाहट आ चुकी है देश में वो खत्म हो जाती। झंडा फहराना है, झंडा फहराते समय ढोल मंजीरे बजाकर ट्रेडिशनल वे में देशभक्त गाना गाना है और नेशनल जो सॉन्ग है वो गाना है। उसके बाद पूरा दिन हमें क्या करना है, देश की सेवा के लिए समर्पित करना, यानी कुछ भी देश के लिए अच्छा है वो काम करना है, चाहे इसमें अछूत लोगों की सेवा करना है, हिंदू मुसलमान एकता को प्रगोड़ करना है, मतलब अच्छा बनाना है, या फिर हम कहें कि देश का कोई भी एक ऐसा काम जिससे देश की उन्नति होती, लोगों की देश की उन्नति, अब पैसा कमाने से देश की उन्नति हो रही है ऐसा नहीं होता है। जहां पर हम कह सकते हैं मॉरल सपोर्ट, ये मॉरल लेसन जो है उसके बारे में ज्यादा गांधी जी बोल रहे हैं। देन हर एक व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि इस दुख और तकलीफ के बाद में जो एक आनंद का समय मिला है वो उन्हें एंजॉयबल होना चाहिए। देन और वो ये कहते हैं कि हर एक देश के जैसे नागरिकों को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र है, वैसे भारतीयों को भी अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो और अपनी स्वतंत्रता को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बहुत एक सुहावनी सी चीज लगती है, बेहद अच्छी सी लगती है
कि हाउ इट इज गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। हम पूरे टाइम इधर उधर की बातें करनी, बड़ी बड़ी गॉसिप सुन ले, परंतु उससे कुछ होता नहीं है। होता है जब हम एक्टिव होते हैं। नाउ and that if any government deprive the people of these rights and oppose them, the people have a further right to alter it or abolish it। अगर कोई व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट इस स्वतंत्रता को और इस स्वतंत्रता के सेलिब्रेशन को बिगाड़ता है, डिप्राइव करता है, विशेष प्रकार से कुछ ही समुदाय के लिए वो खुशहाली की बात करता है, तो उस समाज को या उस तरीके के लोगों को हटा देना चाहिए। तो फर्दर राइट आगे ये है कि उस सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए। ये थे गांधी जी के कथन उस समय की कल्पना के अनुसार, या हम कहते हैं क्या वो स्वतंत्रता की बात उस समय सोची गई थी जब स्वतंत्रता देश की गई। पर आज इस तरह की कोई बातें देखने में नहीं आती, ना ही कोई व्यक्ति इस चीजों को पढ़ता है, ना सुनना चाहता है। बट एज यू एज अ स्टूडेंट यू आर लर्निंग इट, सो व्हेनेवर यू गो फर्दर ट्राई टू मेक इट आउट। इसमें बुराई नहीं, सिर्फ भलाई है, और जब सिर्फ भलाई है, सिर्फ सत्य होता है, तो उससे कोई चीज ढकता या दबा नहीं सकता। नाउ दांडी, सो आप सब जानते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, तो दांडी भी वहां पर आएगा। Soon after the observance of its Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead the march to break one of the most widely disliked law in British India, which gave the state a monopoly in the manufacturing the sale of salt। अजीब लगता है क्योंकि पानी हमारा, जमीन हमारा, नमक हमारा, फिर भी हम सॉल्ट का टैक्स पे कर रहे थे उस जमाने में इंडियंस, और इंडियंस जो थे वो सॉल्ट खरीदते थे। तो ये जो बात थी वो अगर हम देखें तो जैसे इंडिपेंडेंस डे का घोषणा हुआ, महात्मा गांधी ने एक और क्या किया, घोषणा कर दी, और वो चाहते थे कि जो सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला कानून था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि उनकी मोनोपोली कि वही नमक बेचेंगे, उसको तोड़ना। उन्होंने नमक आंदोलन की घोषणा की। इस नमक आंदोलन में से यही था कि गांधी जी को जाना है, एक मुट्ठी नमक बनाना है और उस नमक को उठाकर जनता के सामने प्रकट करना है कि हम अब अपना नमक खुद बनाएंगे, क्योंकि जमीन हमारी है, पानी हमारा है और नमक भी हमारा है। तो यहाँ पर, और इसके लिए हम क्यों टैक्स दें, इसको हम क्यों खरीदें, इसी से हम अपना नमक बना सकते हैं। देन ये मोनोपोली तोड़ने के लिए बहुत दिमाग से गांधी जी ने काम किया था, यानी कि वो इज अ राइट इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, वो कह सकते हैं ना गुजराती बाणिया भी थे, सॉरी टू से दैट, ओके। तो वो जो दिमाग उनका था वो काम करता था, और उन्होंने देखा कि पूरे देश में सब लोग नमक यूज करते हैं, और बड़े पैमाने में नमक की बिक्री और नमक से आर्थिक जो समृद्धि होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो हमको गांधी जी शुरू से ब्रिटिश गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगे हुए थे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या किया कि नमक का जो है वो बनाएंगे, और वो नमक जो है कंबाइन भी करता है। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो नमक इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, किसी भी जगह रहता हो, दे नीड सॉल्ट, ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सॉल्ट की मोनोपोली जो है अनपॉपुलर थी, और गांधी जी ने इसके लिए क्या किया, आह्वान किया। देन अगर हम देखें, ओके, सो गांधी जी ने जो अगर हम देखें तो वी आर मोस्ट इंडियन अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयंस चैलेंज द ब्रिटिश राज apparently did not। जहां भारत की पूरी तरह से समझ गए थे कि गांधी जी क्या करने जा रहे हैं, परंतु ब्रिटिश राज के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, नमक बनाना है, इन्होंने नमक बना के क्या करेंगे। Although Gandhi had advised notice of his salt march to the Viceroy Lord Irwin, then Irwin failed to grasp the significance of the action. Then 12th March 1930,
Gandhi began walking from his ashram of Sabarmati towards the ocean. अगर हम देखें तो गांधी जी के बाद वैसे भी ब्रिटिश राज को समझ में ना आई थी, और दूसरी बात गांधी जी ने अपनी नोटिस भेज दी थी वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन को कि मैं सॉल्ट मार्च करने जा रहा हूँ 12 तारीख मार्च को 1930 को मैं यहाँ से अपने आश्रम से निकलूंगा और दांडी तक जाकर मैं वहां पर क्या बनाऊंगा, नमक बनाऊंगा। मैं उन्होंने अपने अकेले और अपने कुछ सहयोगियों की बात कही थी, और उसके बाद वो वहां से निकले और उनको 3 हफ्ते उनको दांडी पहुंचने में लगे। कारण ये था कि वो बहुत लंबा सफर नहीं करते थे, और कुछ सफर करने के बाद जो है वो उनका रुकने का स्थान होता था, और वो रुकते थे और वहां भाषण देते थे, चरखा काटते थे और वहां के लोगों को जागरूक करते थे, उन्हें स्वतंत्र भारत में कैसे रहना और बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाते थे। उनके ये सब मैसेजेस जो है लोग रिकॉर्ड करते थे या उनको रेडियो में बजवाते थे अलग अलग जगह में, ताकि देश के पूरे लोग उसको सुन सके। और ये ऐसा था जैसे रनिंग कमेंट्री चल रही थी कि कैसे महात्मा गांधी जो है अपनी इस पद यात्रा को शुरू करके जा रहे हैं। अगर हम देखें तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट थी उनके आंखों में गांधी जी क्या थे, क्रिमिनल थे। वो क्रिमिनल होने के बावजूद भी जितने लोगों ने उन्हें देखा, सुना, उनकी एक्टिविटी पर नजर रखा, सबने ये पाया देयर इज नो एक्टिविटी व्हिच कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिमिनल, ओनली अ लॉ व्हिच वाज मेड to we can say just we can say to make the people downtrodden and to make the people under control. This was not the right thing to do by the humans. किसी लोगों को दबा के रखना, गरीब रखना और उनको तंग करते रहना, ये जो है इंसानियत नहीं है। तो बस वही एक कानून थोड़ा था कि सबको नमक मिलना चाहिए और उनको क्या है टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, ये चीज था। तो हम ये कहेंगे क्या ठीक है हमारे सरकार के लोग क्रिमिनल है, परंतु किसी भी हम कह सकते न्यूज या फिर खुद जो अमेरिकन और ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी इन चीजों को उस तरह से लिखने की नहीं कोशिश की या उस तरह का फीलिंग उनको नहीं था। सो आप जो है सोर्स 4 जरूर पढ़ लें। सोर्स 4 में टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट टैक्स लॉ, ये जो है महात्मा गांधी कोटेशन है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पढ़ने वेरी इजी और नॉर्मल इंग्लिश है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Then as with the non-cooperation apart from the official sanction nationalist campaign, there were numerous other streams to protest across a large part of India. Prisons bridged the hated colonial forest law and kept their cattle out of the woods in which they had once roamed freely. In some towns, factory workers went on strike while the lawyers boycotted the British court and refused there. And we can see यहाँ पर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन सिस्टम जो था वो एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके अंदर जो हम ये कहते कि सिर्फ कुछ ही तबके थे। अब अगर हम देखें तो इस सॉल्ट सत्याग्रह में नॉन कॉपरेशनल सिस्टम भी एडिफाइड हो गया। कारण यहाँ पर यह है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए शुरू कर दिया। एक धारा जो है वो जंगल के कानून तोड़ रही थी, लोगों की धारा, ओके। दूसरी जो लोगों के ग्रुप था वो ब्रिटिश जॉब को छोड़ के बैठ गया था। मतलब एक साथ सारा काम जो है एक्टिव हो गया इस दौरान में, और कई लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट को जो है जाना बंद कर दिया था। स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेजेस, ब्रिटिश कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज जो थे उनको छोड़कर इंस्टीट्यूशन से अलग हो गए थे। 20 और 22 में गांधी जी ने लोगों को एनकरेज किया था हर क्लास के, ऑल क्लास मैनिफेस्ट देयर डिस्कनेक्ट विद द कॉलोनियल रूल। उन्होंने कहा था हर जाति मतलब अछूत हो या
जूत हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हर को एकजुट होना पड़ेगा और उनको क्या करना पड़ेगा, देश की सेवा में अपने आप को आना पड़ेगा। अगर हम देखें तो 60,000 इंडियंस जो है सॉल्ट मार्च के अंदर अरेस्ट हुए थे। ये 60,000 जो इंडियंस थे वो पहले नहीं थे, पहले गांधी और उनके कुछ ही लोग साथ चले थे, परंतु जैसे एक कहानी है कि गुरुदेव टैगोर ने बोला था कि अकेले चलो, परंतु तुम जब मुड़कर देखोगे तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यही चीज जो है हम यहाँ देखते हैं, गांधी जी अपने कुछ सहयोगी के साथ और वहां पर चले और अल्टीमेटली 60,000 लोगों की भीड़ उनके साथ क्या हो गई, आइडेंटिफाइड होते चले गए, उनके साथ सपोर्टिव होती चले गई। द प्रोग्रेस ऑफ गांधीयन मार्च टू द शीशो were traced from the selected report filed by the police officer deputed to the mentor his movement। अगर हम देखें जैसे वो आर्मी साहब को पहले ही लेटर दे चुके थे तो जगह जगह पर पुलिस तैनात की थी। पुलिस के रिकॉर्ड में गांधी जी क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, सब कुछ क्या है लिखा जा रहा था। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको जानने के लिए अगर हम देखें तो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हम देख सकते हैं कि ये जो लोकल ऑफिसर्स के उसमें लिखा हुआ था, एक गांव में गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य जब तक नहीं आएगा, जब तक अपर क्लास जो है वो ये नहीं समझेगी कि उन्होंने अनटचेबल्स के साथ कितना बुरा किया है। सॉल्ट टैक्स दे देने या सॉल्ट टैक्स खत्म हो जाने से स्वराज्य का कोई लेन देन नहीं, जबकि अपर क्लास लोअर क्लास या अनटचेबल्स की सेवा ना करे और ये ना माने कि हमने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। दोनों को एक साथ मिलना होगा। स्वराज्य जो है हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, देन पारसियों का है, सिखों का है और हम ये कह सकते हैं भारत माता के आंचल में जितने बच्चे सबका है। माँ के लिए कोई अलग नहीं। पॉलिटिशियंस की बात अलग होती है, परंतु जहाँ देश की बात आती है, जमीन की बात आती है और जो जमीन से प्यार करता है उसकी बात आती है। अगर हम देखें तो वो सभी के लिए स्वराज्य है या उनकी माता है जो उन्हें जन्म देती है, तो उनका हम क्या करते हैं उसमें रहते हैं और उसी में मर भी जाते हैं। अल्टीमेटली यही चीज जो है गांधी जी ने बोला कि अनटचेबल टचेबल कोई सी भी जाति, कोई सा भी धर्म, कोई से भी प्रांत के लोग हो, स्वराज्य सबका है, सबको एक साथ होना होगा और अपने देश के लिए अपने देश को तरक्की में लेके जाना पड़ेगा। द पुलिस स्पाइस रिपोर्ट दैट, यहाँ पर अगर हम देखें तो पुलिस लोगों के जो गुप्तचर थे उन्होंने ये कहा कि वो अपने पुलिस के जो ऐसी गांधी जी की मीटिंग में अटेंड करते थे तो उन्होंने ये कहा कि आदमी तो आदमी, औरतों भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर भाग ले रही थी। हजारों वॉलंटियर्स जो थी वो इसमें नेशनल कॉज के लिए खड़ी हो चुकी थी और वो लोग जो है इसमें इनके साथ चल रही थी। इसके बाद अमन देवपर इन महिलाओं और इन कर्मचारियों में अगर हम देखें तो डिप्यूटेड लोग भी थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो कहा कि गांधी अपील काम एंड कलेक्टिव। गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि उग्र हो जाओ, दंगे करो, हंगामा करो, लोगों को धमका दो या फिर शोर मचा दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा शांत रहना है और इकट्ठा रहना है। देन he is gathering more strength as he proceed। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए उन्होंने उनके साथ बहुत सारे लोग जो है आइडेंटिफाइड होते चले गए। Then the progress of the Salt March can also be traced from other sources. The American magazine Time. This to begin with the scorn at the Ghanaian slope, riding with the descent of the spindle frame and his spindly lance. Thus, in this first report on the march, the Time was deeply speculative of the Salt March reaching its destination. अगर हम देखें तो पुलिस वाले
खुद लोकल लोग, और अब हम देखते हैं अखबारों ने भी सॉल्ट मार्च के ऊपर निगरानी रखी हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका का टाइम जो रिपोर्टर थे, टाइम के जो लेखक थे, टाइम मैगजीन के, उन्होंने एक बार गांधी जी के वेशभूषा पे मजाक बनाया था और कहा था कि क्या है, एकदम हड्डी का ढांचा है, बहुत पतले हैं और इनकी धोती देखो, एकदम इतनी सी धोती पहनते हैं, इनसे क्या होना है। परंतु जब सॉल्ट मार्च के समय उन्होंने जब गांधी को देखा कि इतनी लंबी पद यात्रा, वो सबसे आगे होते थे, उनकी स्पीड, कहते हैं गांधी जी चलते थे तो बहुत स्पीड होती थी उनके अंदर, और लाठी लेके और बहुत स्पीड से चलते थे, या लोग पीछे छूट जाते, जवान लोग पीछे छूट जाते थे और उनको दौड़ दौड़ के उनके करीब पहुंचना पड़ता था। तो ये जो उनकी अंदरूनी क्षमता जो थी, उसको देखकर टाइम वाला बहुत गहराई से उनका कायल हो गए और उनको पसंद किया और एडमायर किया। देन अगर हम देखें तो उन्होंने जो देखा कि इतनी मतलब फिजिकली जो अनफिट लगते हैं, फिजिकली जो बहुत ही वीक है, वो सप्ताह चलकर अपने डेस्टिनी में पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि गांधी को तो सल्यूट किया जाना चाहिए, और वो एक सेंट और एक स्टेटमेंट मतलब कहने वाला और करने वाला व्यक्तित्व के रूप में है, जिसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी की या फिर एक डेवलप सिविलाइजेशन की बात करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने जो टाइम्स ने कहा कि उन्होंने क्रिश्चियन एक्ट को एज अ वेपन यूज किया, यानी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को एक मशीन या एक सिस्टम के कानून के रूप में यूज किया उन लोगों के विरुद्ध में जो कि ईसाई मत के कहलाते थे। यानी कि ईसाई मत के होने के बावजूद भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि ये उसी चीज को जो क्रिश्चियन एक्ट है या क्रिश्चियन लोगों की सोच है, उसी को क्या कर रहे हैं, एडमायर कर चुके और काम कर रहे हैं उसके। अगर हम देखें तो बाइबल में कई जगह पे सॉल्ट के बारे में लिखा है कि और जीसस क्राइस्ट ने खुद ने कह दिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो गांधी जी ने उसी चीज को क्या कर दिया, इम्प्लाइंट कर दिया, दिखा दिया कि लो भैया तुमने तो पढ़ा ही पढ़ा और तुमने बस उसके कुछ काम का नहीं तुम्हारे लिए, हम इस चीज को क्या करते हैं, एक्ट करके दिखाते हैं। इसीलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको हमें सब क्या कह सकते हैं, सिर्फ पढ़ना और ऐसे ही अपने डिग्रीज के लिए नहीं होता है, परंतु ऐसे इसलिए भी होता है कि वो जो है हमें रास्ता दिखाए, वो एक रीमा बन जाए और वो हमारे लिए एक लाइट बन जाए, वो लाइट जो आपको फ्यूचर और बेटर लाइफ की ओर लेके जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा ज्यादा डायलॉग्स हो गए, नो प्रॉब्लम। तो आज आप जो है पहले हाउ टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ कॉमरेड्स टू सेलिब्रेट द independence, and second how the satyagraha was started, how the salt march was started, and इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। मैंने आपको बोला था कुछ और भी काम कॉपीज आपके कलेक्ट होने वाली, प्लीज कंप्लीट इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।